Hello students, welcome to your channel Science with Rana sir. Today we are going to discuss the important questions for class 10th and I'm going to cover up this video in three parts, one for chemistry, second for physics, third for biology. So let's start with the important question of the first part, that is of chemistry. So students, here in chemistry the first question it's from complete chemistry, that is from all the four parts for all the four lessons. So let's start with the important question of chemistry from the lesson number 1. A sweet chemical compound, देखिए whenever you got getting the question related to the sweet smelling compound, that is sweet smelling, whenever sweet smelling compound come, obviously it's an ester. So in your CBSE syllabus the most important thing, that formula ester C4, your formula C4 contains CH3 COO and C2H5. So whenever you add H2SO4, dilute means it has the water and H2SO4, it get completely hydrolyzed, and after hydrolysis it get converted to CH3COOH, and your side product is ethanol, CH3CH2OH. Is that clear? So your compound B is your ethanol, compound C is your ethanoic acid. Why is it so? Because B compound on oxidation with K2Cr27. What is the function of that K2Cr2O7? देखिए मैं एक सिंपल सा यहाँ स्लोगन यहाँ पे याद रख लीजिए आप कि भाई K2Cr2O7 आपको लिख के दे या KMnO4, they'll give it to you. What is the function of it? They both are good oxidizing agent. तो इनका एक ही स्लोगन है, तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें ऑक्सीजन दूंगा, तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें ऑक्सीजन दूंगा. सो आफ्टर दैट द प्रोडक्ट इज CH3COOH. बेसिकली ये जो हाइड्रोजन है इट गेट रिप्लेस्ड बाय the oxygen, it get replaced by the oxygen. So that's how your compound B is ethanol, and this compound is your ethanoic acid, and this is compound A. What would you observe by adding again alkaline KMnO4? Look at here, what is the function of it? Again तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें ऑक्सीजन दूंगा. सो अगेन हम लोग अगर देखें तो यहाँ इथेनॉल आ गया. इथेनॉल whenever get warm up in the presence of 5% of alkaline KMnO4, भाई ये हाइड्रोजन मुझे दे दो, मैं तुम्हें यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता हूँ. तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते ही प्रोडक्ट क्या बना? CH3COOH. अगेन लुक एट हियर, हाइड्रोजन गेट रिप्लेस्ड बाय दैट ऑक्सीजन पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज द डिहाइड्रेशन. देखिए डिहाइड्रेशन काम कराना सिर्फ एक ही एजेंट का है, H2SO4. अब सिंपल देखिए यहाँ कंपाउंड रिएक्शन कैसे लिखेंगे आप, CH3CH2OH. जैसे ही आपने इसके अंदर H2SO4 को ऐड किया, इसका काम क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर. अब रिमूवल ऑफ वाटर कैसे? इसको एक क्लब कर लो, C2H6O. देखिए ये इसका फॉर्मूला है. H2SO4 का काम क्या है? पानी निकालना. वाटर रिमूव कर दो, यहां से -H2O कर दो आप, C2H4, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास में? H2O. That's what is the product. Another important part is the detection of unsaturation. Whenever you got the question related to the detection of unsaturation, देखिए there are two tests. One is the bromine water test, and your second is KMnO4, which is also called as the Bayer's reagent test. That is Bayer's reagent test. तो बेटर इज व्हाट कि आप ब्रोमीन वाटर यूज कर लें. सपोज करें कहीं पे भी एक ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यू आर एडिंग ब्रोमीन वाटर इन इट. तो ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन. द कलर इज रेडिश ब्राउन. तो रेडिश ब्राउन कलर क्या करेगा? जैसे इसको कांटेक्ट में आएगा कलरलेस हो जाएगा. सो दैट मीन्स आप यहाँ क्लब कर लो C2H4. तो आप यहाँ पे C2H4 Br2 भी आप इसको लिख सकते हो, बट एक्चुअल में जो कंपाउंड बनेगा, दिस वन इज योर कंपाउंड. आपका कंपाउंड ये है. नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ एल्कोहल. देखिए इट इज डन बाय सोडियम. इट इज बेटर नॉट टू यूज दैट, यूज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन फॉर इट. ये कॉमन हो जाएगा आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. देखिए आपको चाहे अल्कोहल की डिटेक्शन दे और चाहे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की डिटेक्शन दे प्रोवाइड टू यू इन क्वेश्चन पेपर. तो कार्बोक्सिलिक एसिड की भी अगर प्रिपरेशन, स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट पार्ट ना हो. देखिए अब आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में वी आर डीलिंग विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. तो whenever you electrolyze aqueous solution of NaCl, so immediately what happen? It results in the formation of NaOH, Cl2,
एंड योर हाइड्रोजन गैस। देखिए इस रिएक्शन, इस प्रोसेस को हम लोग क्लोरल्किली प्रोसेस बोलते हैं। विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा वैसे देख लेते हैं, फिर डायग्राम देखेंगे आगे जाके। बट अभी के लिए हम लोग सबसे पहले इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि किस चीज के बारे में यहाँ ये क्वेश्चन बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इट डील्स विद द थर्मल डिकम्पोजिशन। ये कुछ टेस्ट ट्यूब के डायग्राम है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है कई बार भी। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, लेड नाइट्रेट की बात कर रहा है। देखिए लेड नाइट्रेट की इफ वी टॉक अबाउट, तो लेड नाइट्रेट के डायरेक्ट हीटिंग वाली रिएक्शन हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम लोगों ने इसको हीट किया तो इमीडिएटली इट गिव राइज टू 2 PbO इन द सॉलिड स्टेट। साइड प्रोडक्ट में NO2 गैस बनेगा और साइड प्रोडक्ट में इसमें O2 गैस बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है कि जब भी ये लेड नाइट्रेट के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ अगर किसी ऑप्शन की बात करें तो ब्राउन कलर गैस आएगा ही आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। येलो कलर रेजिड्यू की भी बात होगी, ब्राउन कलर गैस की भी बात होगी। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगेन मैंने इसको हीट किया है तो ऑब्वियसली इट्स अ थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग कर देते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन, ये रही हमारी। नेम द गैस इवॉल्व, नाइट्रोजन NO2 गैस एंड O2 गैस दोनों निकल रही है। व्हाट कलर चेंज डू यू ऑब्जर्व, ब्राउन कलर गैस या येलो कलर भी बोल सकता है, ठीक है। एंड रेजिड्यू का कलर क्या है, येलो, ठीक है। तो इस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है। वही वही जो क्वेश्चन चल रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, उसी के ही एक जैसे से ही पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, फेरस सल्फेट वाली एक्टिविटी भी। तो फेरस सल्फेट से जब कभी भी क्वेश्चन आए, सिंपल इसकी भी इक्वेशन याद रख लो आप लोग। FeSO4 इंटू 7H2O। देखिए इसका जो कलर होगा दैट इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर, एंड इट इज ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो व्हेनेवर यू हीट इट तो इमीडिएटली क्या होगा, दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गेट रिमूव्ड, वहां से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाएगा और इसका कलर क्या हो जाएगा, आपका व्हाइट कलर आ जाएगा यहाँ पे। द कलर ऑफ FeSO4 इज व्हाइट। बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहीं पे रिएक्शन नहीं रुकती है, ये फर्दर अगर मैं इसको हीट करता हूँ, इट इमीडिएटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3, साइड में SO2 गैस एंड साइड में SO3 गैस। ये सभी प्रोडक्ट्स वहां पे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड आपका फेरिक ऑक्साइड विच इज द ब्राउन रेजिड्यू। तो आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, अगेन इट्स अ थर्मल डिकम्पोजिशन बिकॉज वी आर हीटिंग इट। केमिकल रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे। Why does the ferrous sulfate changes its color on heating? Due to loss of water of crystallization. Due to loss of water of crystallization. Water of crystallization. That is the one. Name the pungent smelling gas. Pungent smelling gas is your SO3 gas, which is and as well as SO2 gas, which also cause the suffocating, which also has the suffocating smell. अब हम लोग बात करें नेक्स्ट पार्ट में। देखिए अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम लेसन नंबर 4 दैट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एज वी हैव ऑलरेडी डन इट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही है, देखिए एस्टेरिफिकेशन में क्या है, CH3COH इथेनोइक एसिड है। whenever this ethanoic acid reacts with ethanol, suppose it reacts with ethanol, CH3CH2OH, ethanol, obviously in the presence of H2SO4, H2SO4 what is the function of it, removal of water। और water कैसे, OH एक साइड से, H एक साइड से। now what is remaining, रिमेनिंग पार्ट जो इथेनोइक एसिड की साइड से आ रहा है, इट इज योर CH3CO, एंड द रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम द अल्कोहल साइड, इट इज योर OC2H5, and side product is your water। so what is the important thing, again this lead to the formation of ester, sweet smelling compound, so it's an esterification reaction। now what about the saponification reaction? Saponification is the, you can say जो esterification है इसी की हाइड्रोलिसिस किए है इन अल्कलाइन मीडियम। देखिए इन योर बुक्स एक्चुअल रिएक्शन जो उन्होंने दी है, इट इज लाइक दिस कि whenever you are adding NaOH in it, तो इमीडिएटली आप लोगों ने क्या करना है, NaOH का जो ये वाला Na वाला पोर्शन है, इट गोज विद दिस पोर्शन, यहाँ पे चला जाएगा और इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3COONA, and the side product which is remaining is the C2H5 and your OH। ethanol formed is your ethanol is your side product यहाँ पे जो बना है। इसके बाद क्या आ गई, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को रिमूव करना है हमें। पानी रिमूव करने के लिए वी नीड H2SO4। जैसे ही आप लोगों ने H2SO4 ऐड किया, इमीडिएटली यहाँ से H2O को माइनस कर दो। जैसे H2O माइनस किया, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ C2H4, और आप इसके स्ट्रक्चर को CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एंड साइड एंड वाटर फॉर्म्ड एज अ साइड प्रोडक्ट। अब नाउ इफ वी टॉक अबाउट द गिव द टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन। देखिए
इथेन क्या है? एक सैचुरेटेड कंपाउंड विच हैज अ सिंगल बॉन्ड, और इथीन क्या है? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दिस इज योर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो वन इज द सैचुरेटेड कंपाउंड, सेकंड वन इज द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड होगा, सो यू कैन यूज द ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। क्या है टेस्ट? C2H4, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ब्रोमीन ऐड कर दो। ब्रोमीन का कलर क्या है? रेडिश ब्राउन, यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका एक्वस ब्रोमीन का। इमीडिएटली इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ C2H4Br2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एक्चुअल में आप इसको CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, यू कैन राइट इट लाइक दिस। बट जब रेडिश ब्राउन कलर था, नाउ इट बिकम्स द कलरलेस, नाउ इट बिकम्स द कलरलेस। सो इससे क्या पता लग रहा है कि हम लोगों ने यहाँ से कलर को रिमूव कर लिया है, तो इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, वही मैंने एक ही टेस्ट लर्न कर लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एस्टेरिफिकेशन टेस्ट जो अभी अभी किया, देखिए इथेनोइक एसिड में इथेनॉल डालो, एस्टर बनेगा, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बन जाएगा, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, कंपाउंड बन गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब खुद सोचो कि इथेनॉल में इथेनोइक एसिड डाला तो स्वीट स्मेलिंग बना, लेकिन इथेनोइक एसिड में इथेनोइक एसिड डालूंगा कुछ नहीं होगा ना, तो ये टेस्ट आप लिख सकते हो। मतलब आपको ये रिएक्शन आया एस्टेरिफिकेशन, यही लिख दो। आप डिस्टिंग्विश टेस्ट है, ये लिख दो। अब सोप एंड डिटर्जेंट का डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? देखिए सोप जो होते हैं जनरली ये हार्ड वाटर में काम नहीं करते। हार्ड वाटर होते हैं जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की इंप्योरिटी होती है। हार्ड वाटर के अंदर ये क्या करते हैं? सोप जो है प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं अपने, सोप सॉल्ट आउट हो जाएगी, वहां पे अलग हो जाएगी। लेकिन डिटर्जेंट क्या है? हार्ड वाटर में भी काम करेंगे। हार्ड वाटर मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम वाली इंप्योरिटीज वाले सॉल्यूशंस के अंदर भी ये काम करेंगे वहां पे। नेक्स्ट रिएक्शन आ गई हमारे पास में, देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रोमिनेशन? अगेन सेम चीज, देखिए मैंने कहा ना ब्रोमीन वाटर के जो टेस्ट है, क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, घूम फिरा के नए तरीके से आ जाएंगे। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्रोपीन, बस छोटा सा चेंज है। प्रोपीन क्या चीज है? C3H6, ठीक है। वेन एवर यू एड ब्रोमीन इन इट, देखिए एक्वस ब्रोमीन जैसे ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, सॉरी CCl4 में ध्यान नहीं रहा, लिख लीजिएगा। यहाँ क्या बनेगा? C3H6Br। अब देखिए अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाने जाऊं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे ही आपने Br2 एक्वस ब्रोमीन ऐड किया तो एक Br आपने यहाँ अटैच कर देना। लाइक देखिए ये हमारा जो ब्लैक कलर का ये अर्लियर मॉलिक्यूल है। अब मैंने क्या किया, जैसे इसके अंदर ब्रोमीन को ऐड किया तो इमीडिएटली वन ब्रोमीन कम टू दिस साइड एंड द अनदर वन ऑन दैट साइड। सो ये आ गई ब्रोमिनेशन हमारे पास प्रोपीन की। अब देखो आयरन नाइफ कैप्ट अंडर ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या है? CuSO4। जैसे ही आपने इसके अंदर क्या ऐड किया? एक आयरन नाइफ को डिप किया, सपोज करो आप आयरन डिप कर रहे हैं इसमें, तो इमीडिएटली आयरन क्या करेगा? अगर आपको याद हो तो एक रिएक्टिविटी सीरीज थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों हम आगे और पकाएं। इसकी अगर हम लोग सीरीज की बात करें, प्लेटिनम लास्ट में है, तो आयरन ऊपर है, मान लो एक बंदा बिल्डिंग में ऊपर है और एक बंदा नीचे है, तो ऊपर वाला चाहे तो गमला फेंक के नीचे वाले को उसकी जगह से भगा देगा, लेकिन नीचे वाले के लिए चीज पॉसिबल नहीं है। तो ऊपर क्या था? आयरन था। आयरन कहता मैं ऊपर गमला फेंक रहा हूँ, तू हट जा नीचे से। अब वो अपनी ऑब्वियस सी बात है पोजीशन छोड़ के भाग गया बेचारा, तो आयरन तो यही चाहता था। अब आयरन बैठ गया सल्फेट के साथ उसके घर में और कॉपर को दौड़ा दिया उसके घर से। तो यू कैन लर्न इन दैट वे इवन, यहाँ पे भी आप इजीली लर्न कर सकते हो इस तरह से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखिए अरे बड़ा आसान से एक चीज ध्यान रखना कि सारे के सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जितने भी होंगे हमारे, सारे के सारे ऑक्साइड जो है नॉन मेटल के, उनका नेचर जो होता है एसिडिक होता है। और पता कैसा लगे अभी बताता हूँ। और जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर जनरली बेसिक इन नेचर, वो सभी के जो नेचर है वो बेसिक नेचर है, ठीक है। हमें जो यहाँ छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, इसने न्यूट्रल बोला है। अब न्यूट्रल कौन होता है? देखिए यहाँ पे सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका नेचर न्यूट्रल है। कैसे पता लगे? देखिए वाटर ऐड कर लो आप, बस आपने कुछ नहीं करना, जस्ट ऐड वाटर इन इट। जैसे वाटर ऐड किया CO2 में, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ H2CO3, कार्बोनिक एसिड, एसिड बन गया भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड में H2 ऐड करो, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे P2O5 के अंदर हम लोगों ने वाटर ऐड किया, इमीडिएटली इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगेन इसका नेचर क्या? एसिडिक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? कार्बन मोनोऑक्साइड।
व्हाट इज लाइम वाटर टेस्ट? देखिए लाइम वाटर टेस्ट जो होता है इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ CO2, डिटेक्शन ऑफ CO2। हम लोग इस टेस्ट की हेल्प से CO2 की डिटेक्शन करते हैं। कैसे? देखिए लाइम वाटर क्या हमारा CaOH होल ट्वाइस, जैसे ही आपने इसके अंदर CO2 ऐड किया इमीडिएटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 एंड साइड प्रोडक्ट में आपके पास आ गया वाटर। तो यहाँ पे क्या बन गया? व्हाइट पीपीटीज। तो हम इस व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो इस टेस्ट की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं इसको डिटेक्ट ना, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका ध्यान रखना। इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, अ सिंपल वन। इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। CO2 का टेस्ट आ गया, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट आ गया। NO2 का कभी भी टेस्टिंग आए तो रेडिश ब्राउन गैस निकल रही है, ये इतना ही क्लास 10 से जनरली होता है, रेडिश ब्राउन गैस, इससे ऊपर नहीं जाएगा। SO3 गैस की अगर बात करें तो ये K2Cr2O7 के साथ क्या करेगा? ग्रीन कलर की फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, क्योंकि इसका कलर ऑरेंज होता है, ग्रीन बन जाए तो ये गैस की डिटेक्शन आ गई। तो ये चारों गैसेस की डिटेक्शन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो बी पार्ट आ गया इसी क्वेश्चन का, कह रहा है अ वाटर सोलुबल इनसोलुबल सब्सटेंस। देखिए वाटर इनसोलुबल सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है। ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट H2SO4 रिलीजेस अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस और कंपेन ब्रिस्क एफर्वेसेंस। देखिए जब भी कभी ब्रिस्क एफर्वेसेंस का क्वेश्चन आए तो आंख बंद करके आंसर आपका CO2 ही निकलने वाला है वहां पे, ठीक है। 90% क्वेश्चन का आंसर ये है। आगे इसको कंफर्म भी कर देता हमें। When a gas is passed through the water the solution become turn blue litmus to red, यानी कोई एसिड बना है। अब देखो जब CO2 गैस को हम कभी वाटर से पास करते हैं तो ये देखिए क्या बनाता है अपना, एक एसिड फॉर्म कर देता है। Whenever CO2 गैस इज पास थ्रू वाटर इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ H2CO3। चेक करिए ये जो H2CO3 बना है तो ऑब्वियसली एसिडिक है, तभी लाइम जो लिटमस है वो रेड हो रहा है। लाइम वाटर से पास कर दो, अब CaOH होल ट्वाइस को जैसे लाइम वाटर से पास किया तो इमीडिएटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 प्लस H2O। सो दैट मीन्स ये जो बने हैं व्हाइट पीपीटीज यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ये सेम रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। लेकिन इनिशियली इट बिकम्स मिल्की एंड मिल्कीनेस डिसअपीयर। हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रीजन इज दैट कि जब कभी भी CaCO3 को व्हेनेवर वी पास आउट थ्रू द वाटर एंड CO2 इन एन एक्सेसिव अमाउंट इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। हमेशा ये बाइकार्बोनेट बनाएगा। और बाइकार्बोनेट क्या होता है? जनरली आपका कलर वहां पे जब बाइकार्बोनेट होगा उसकी जो मिल्कीनेस है वो सारी गायब हो जाएगी, जनरली ट्रांसपेरेंट से कलरलेस सा सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा। तो रिएक्शन देख लेते हैं, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी वाटर सोलुबल इनसोलुबल सब्सटेंस है CaCO3। जैसे ही आपने CaCO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CaSO4 एंड साइड प्रोडक्ट में CO2 एंड साइड प्रोडक्ट में वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई? CO2 गैस, ठीक है जी। अब सब एक और चीज ध्यान रखना है, H2SO4 की जगह कभी कई बार हमारे पास ये क्वेश्चन में HCl को भी उठा सकता है। सो इन दैट केस आपने क्या करना है? रिएक्शन को चेंज कर देना, मॉडिफाई कर देना। CaCO3 प्लस HCl give rise to CaCl2 and side product is your H2O। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ डू आई एम राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? चैनल पे जाके देख सकते हैं, अर्लियर वीडियोस के अंदर शेयर किया गया है ये सब की सारी डिटेल्स। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मार्बल स्टेचूज ऑफ्टन स्लोली गोट कोरोडेड। देखिए मार्बल स्टेचूज किसके बने होते हैं? CaCO3 के, एज यू ऑल नो। तो CaCO3 का ये बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली जैसे ही ये क्या करेगा, ये CaCO3 गेट ओपन कोरोडेड। अब कोरोड क्यों हो रहा है? खत्म होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये किसी एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है। एसिड के जैसे कांटेक्ट में आ रहा है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड CO2 गैस। तो अब इस वजह से वो डैमेज हो रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि कोरोड हो क्यों रहा है? देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर जो पोल्यूशन है वो या तो SO2 गैस, NO2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी मान सकते हैं, इनकी वजह से आने लग रहा है पोल्यूशन। जैसे SO2 गैस आया या SO3 गैस भी इवन आप कंसीडर कर सकते हो। तो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आया इमीडिएटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। तो ये जो बन गया हमारे पास में एसिड बन गया ना ये, तो ये एसिड ही इसके ऊपर अटैक कर देगा। लाइक अभी ये वाली रिएक्शन आप कंसीडर कर सकते हो इसी चीज के आंसर में, इसी क्वेश्चन के आंसर में। आप नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारा एल्कलीज। देखिए वाटर सोलुबल बेस जितने भी होते हैं, ऑल वाटर सोलुबल बेस, वाटर सोलुबल बेसिस आर कॉल्ड एज एल्कलीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है आपने, कि जितने भी एल्कलीज हैं मतलब वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब दे विल चेंज द रेड लिटमस टू ब्लू। एग्जांपल क्या आ गया हमारे पास में? NaOH। और क्या एग्जांपल आ गया? KOH। मतलब आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो, बोथ आर द स्ट्रॉन्ग बेस। What happen when gypsum is heated at a temperature of this? What is the formula of gypsum? CaSO4 dot 2H2O। This is your gypsum।
जब आपने इसको डॉट 373 केल्विन पे हीट किया, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CaSO4 डॉट हाफ H2O, मतलब हेमी हाइड्रेटेड फॉर्म बन गई और 1.5 H2O वहां से रिलीज हो गया। तो कहने के बाद ये जो बना है, दिस इज योर POP विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। A compound X of sodium is commonly used for making crispy पकोड़ा। देखिए किस कभी भी क्रिस्पी पकोड़ा पे क्वेश्चन आ जाए, आपको मिल्क मैन वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, मिल्क मैन वाला क्वेश्चन आ जाए, क्रिस्पी पकोड़ा का क्वेश्चन आ जाए, कोई केक का क्वेश्चन आ जाए, कोई बिस्किट का क्वेश्चन आ जाए, तो किसी का भी क्वेश्चन आए आंसर एक ही है सभी का, वो है NaHCO3 सब क्वेश्चन का। या इवन फायर एक्सटिंग्विशर पे भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप सभी का आंसर सिर्फ NaHCO3 आने वाला है। क्यों? इस सभी की एक ही रिएक्शन है, हमें ज्यादा दिमाग इसमें नहीं चलाना है। NaHCO3 को हीट कर दो, इमीडिएटली इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3, साथ में H2O, साथ में CO2 गैस। ये जो CO2 गैस निकली है, ये क्रिस्पी पकोड़ा बनाएगी, यही केक बनाएगी, यही आपका फायर एक्सटिंग्विश भी करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बचा मिल्कमैन। अब मिल्कमैन वाला काम क्या है? देखिए मिल्कमैन जब घर से चलेगा तो मिल्क में क्या प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड। तो वो जो लैक्टिक एसिड बनेगा किस में बनने लग रहा है? ये मिल्क के अंदर। तो ये जो लैक्टिक एसिड बनने लग रहा है, ये क्या कर रहा है? पीएच को लो कर रहा है, यानी हमारा दूध जल्दी खराब हो जाएगा इसमें। तो इन दैट केस मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर उठा के डाल दो भाई NaHCO3, ये इसके पीएच को क्या कर देगा? राइज कर देगा। पीएच क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा मिल्क है, वो खराब होने से बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी अभी मैंने आप लोग के साथ में जो डिस्कस किया था कि नॉन मेटल बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड, मेटल बनाएगा बेसिक ऑक्साइड, बट व्हाट अबाउट द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है Al2O3 और ZnO। मैं दोनों की लिख देता हूँ, रिएक्शन पूछते ही पूछते हैं। Al2O3 में HCl ऐड कर दिया, इमीडिएटली इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ AlCl3, साइड प्रोडक्ट इज योर H2O। जस्ट बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, हम लोगों ने इक्वेशन को यहाँ बैलेंस कर दिया है। कितना आ गया? ऑक्सीजन हमारी आ गई 3, 6HCl, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, 2AlCl3 आ गया, ऑक्सीजन 3H2O, 6 हाइड्रोजन। ठीक है जी, बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन। सेकंड आ गया हमारे पास, अगर मैं यही Al2O3 की रिएक्शन H2SO4 सॉरी NaOH के साथ करवाता हूं, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NaAlO2, साथ में क्या बन जाएगा? H2O, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, यहाँ पे इसने एसिड से भी रिएक्ट किया, यहाँ से इसने बेस के साथ भी रिएक्ट किया। इसका मतलब इसका नेचर क्या आ गया? एम्फोटेरिक। इस नेचर इज एम्फोटेरिक। एक और रिएक्शन में लिख देता हूं ZnO की। ZnO जैसे ही क्या करेगा? HCl के साथ रिएक्ट करेगा, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ZnCl2, साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास में? H2O। तो इसका मतलब इसका नेचर भी क्या रहा है? एम्फोटेरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यही ZnO आपका NaOH के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे ही NaOH से इसके साथ रिएक्शन कराया, इमीडिएटली इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Na2ZnO2 एंड साइड प्रोडक्ट इज योर वाटर अगेन। इंपॉर्टेंट चीज, बैलेंसिंग कर दो इसकी। देखिए ध्यान से, इसकी भी बैलेंसिंग कर दो भाई, देखो ध्यान से। अब इंपॉर्टेंट चीज ये क्या बन गया? सोडियम जिंसेट। ये क्या बना? जिंक क्लोराइड। अगेन इसने एसिड के साथ भी रिएक्ट किया, और अगेन अगर आप देखें तो इसने बेस के साथ भी रिएक्ट किया। एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, हेंस इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो इन दोनों का भी क्वेश्चन आराम से उठ सकता है। वैसे तो BeO का नेचर भी ध्यान रखना, एम्फोटेरिक होता है, बट इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या आ गया? व्हाट इज एनोडाइजिंग। देखिए एनोडाइजिंग के केस में हमारे पास में क्या आने लग रहा है? एनोडाइजिंग आ रहा है कि भाई देखिए जो एल्यूमिनियम है वो आराम से खराब हो सकता है, ठीक है। अब उसके सरफेस को हम लोग करोड कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो प्रोटेक्टिव लेयर ना बना ले। लेकिन बेटर ये होता है कि ये लेयर पहले ही बना दो। तो उन्होंने क्या किया? एक कंटेनर लिया, कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलाइटिक एसिडिक सॉल्यूशन डाला, एक कैथोड बना लिया, दूसरा उन्होंने एक एनोड बना लिया, और दोनों को करंट के साथ में कनेक्ट कर दिया। तो एक बन गया कैथोड, वन इज योर कैथोड, सेकेंड इज योर एनोड। एक बना दिया कैथोड और दूसरा बन गया हमारे पास में एनोड। तो कैथोड हम लोग मान लो प्लेटिनम का बना लिया, लेकिन एनोड ध्यान रखना है एल्यूमिनियम का ही रखना पड़ेगा। बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जैसे करंट को पास करोगे इमीडिएटली यहाँ सरफेस पे एक लेयर बन जाएगी, दैट लेयर इज ऑफ ऑक्साइड लेयर। ये लेयर मेनली ऑक्साइड की लेयर बनेगी, और ये क्या करेगी? इस मेटल को, एल्यूमिनियम को किस में चेंज कर देगी? Al2O3। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम इसे बोलते हैं। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपनी क्या बना रहा है? एक प्रोटेक्टिव लेयर। क्या चीज है ये? एक प्रोटेक्टिव लेयर है।
जिससे हमने एल्यूमिनियम को अब यहाँ बचा लिया है, अब वो खराब नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया, राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक, सो नेक्स्ट इज द, अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के केस में क्या आ गया हमारे पास में, ये कंटेनर लिया उसी तरह से आपने, एक कैथोड हमने अप्लाई कर लिया, एक हमने एनोड बना लिया वहां पे, ठीक है, और दोनों को करंट से इस तरह से। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैथोड आ गया हमारा, ये ध्यान रखना बहुत ही पतला रहेगा, थिन रखना पड़ेगा हम लोग को, डायग्राम में वैसे ठीक है। एनोड को आपको क्या रखना पड़ेगा, मोटा रखना पड़ेगा, काफी थिक रखना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये आपका इम्प्योर वाला रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका इम्प्योर, जबकि यहाँ पे क्या रहने वाला है, प्योर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिसका भी मेटल का आपको कराना है वो उसी का ही सॉल्ट सॉल्यूशन रखना, उसी का ही सॉल्ट सॉल्यूशन। ध्यान रहे कि अगर आप कॉपर यूज करें तो कॉपर सल्फेट आ जाएगा, और कोई मेटल यूज करे तो और कोई आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देते हैं भाई। ये हुआ कि जैसे ही हम लोगों ने करंट को पास करना शुरू किया तो यहाँ से कॉपर की क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, यानी एट एनोड जो कॉपर था, कॉपर जो है वो अपने आप को कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज करके इसने ऑक्सीडाइज करवा दिया। लेकिन एट द सेम टाइम जो कैथोड था हमारे पास में, उसी कैथोड ने उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लिया एंड दैट गेट चेंज टू Cu। तो हुआ क्या, कुछ भी तो नहीं हुआ, वही टूटा वही बना, नहीं, यहां से कॉपर टूट के सॉल्यूशन में आया और सॉल्यूशन वाला कॉपर यहां पे चला गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां से एनोड से जो कॉपर था वो टूट के कहा गया, सॉल्यूशन में, और जो सॉल्यूशन का कॉपर था वो कहां जाके अटैच हो गया, ऑब्वियसली कैथोड के ऊपर। इसकी वजह से कैथोड की जो विड्थ है वो मोटी होती चली जाएगी, लेकिन जो एनोड है, एनोड आपका डिकम्पोज होता जाएगा इस तरह से, वो खत्म हो जाएगा एक टाइम पे पहुंच के। सो दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, काफी अच्छा प्रोसेस है जिसे हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर गैल्वेनाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन, देखिए गैल्वेनाइजेशन होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है, ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है जो हम लोग बनाने लग रहे हैं, किसकी हेल्प से, जिंक की। जिंक की हम लोगों ने एक प्रोटेक्टिव कोटिंग दे दी, किसके ऊपर, एक आयरन के ऊपर एक कोटिंग दे दी है। मान लो ये आयरन का पाइप है और ये हम लोगों ने इसके ऊपर एक कोटिंग दे दी है, किसकी कोटिंग है, जिंक की कोटिंग है, इस तरह से। अब हुआ ये कि जब इसके अंदर से पानी बाहर जाने लग रहा है, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली देखिए आयरन जो है वो तो ऑक्सीडेशन तो होगी होगी बेचारे की, उसे तो हम रोक नहीं सकते हैं, कारण ये है कि वहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस तो होगा ही होगा बिकॉज ऑफ वाटर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी है। अब ऐसा ना हो तो हम लोगों ने क्या किया, जिंक लगा दिया है 10 टाइम ऊपर। अब जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में याद ही होगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों हम आगे और पकाएं, ये आ गया। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखिए जिंक ऊपर आयरन के, यानी हम लोग यहाँ पे आयरन से, आयरन को जिंक से कर सकते हैं रिएक्ट। तो जैसे ही जिंक कांटेक्ट में आया Fe2 पॉजिटिव के, जिंक ने कहा भैया तुम मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले ले, लेकिन अपने आप को बचा ले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखिए आयरन पाइप ने तो खुद को बचा लिया, लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता जाएगा कि जिंक है उसकी कोटिंग ऊपर से रिमूव होती चली जाएगी इस तरह से, इस तरह से, और एक दिन आएगा जिंक पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये इस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया गैल्वेनाइजेशन। कहाँ यूज कर रहे हैं, आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए, हम लोग रस्ट होने से बचाने के लिए उसकी आयरन पाइप को। नेम टू मेटल दैट रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू गिव हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने का मोटो ये था, देखिए HNO3 की एक प्रॉपर्टी है, HNO3 की एक प्रॉपर्टी, इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज कर लिया इसने अपनी, कि भाई देखिए किसी भी मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है भाई, ये सिंपल रिएक्शन है, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन अब एक एक्सेप्शन जो लिखी हुई है, अगर वहीं पे मेटल की जगह एसिड की जगह HNO3 हुआ तो सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन साइड प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसकी ऑक्सीडेशन होके वो वाटर में चेंज हो जाएगा। तो यहां हमें वो दो मेटल के नाम बताने को कह रहे हैं जो इससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ही बनाती है, मतलब वाटर नहीं बनाती, मतलब इससे अच्छे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपका यहां आंसर में रहेगा मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, दो मेटल यहां पे हमारे पास रहने वाली है। नेक्स्ट, इथीन कलराइज डीकलराइज वाटर टू ब्रोमीन वाटर टू इथेन डज नॉट। वही सेम रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है जो अनसैचुरेशन के लिए को की डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इथेन क्या है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसके अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली ये रिएक्ट नहीं करेगा।
इथेनोइक एसिड गिव ब्रिस्क एफरवेसेंस विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल, देखिए मैंने अभी अभी तो बताया था ये कि NaHCO3 जब भी किसी एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या करता है कि उसका हाइड्रोजन खुद डिस्प्लेस करेगा, तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, CH3COONA सोडियम एसिटेट। अब जो बचा हुआ हिस्सा वो H और ये HCO3 क्या बना देंगे, H2CO3, जिसे हम लोग H2 और साथ में CO2 भी लिखते हैं। तो एफरवेसेंस मैंने स्पेशली कहा था, एफरवेसेंस का जब भी क्वेश्चन आए आंसर CO2 ही रहने वाला है। सॉफ्ट फॉर्म, कर्डी, व्हाइट, प्रेसिपिटेट और स्कम। अब देखिए वही चीज आ गई जो मैं पहले भी बता रहा था। फॉर्मूला ऑफ सॉफ्ट इज C17H35COONA सोडियम स्टीरेट। ठीक है, जैसे ये किसी भी हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हार्ड वाटर में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन की इंप्योरिटीज की वजह से ही हार्डनेस आती है, तो मैग्नीशियम इस सोडियम को हटा देगा इसकी जगह से, and it results in the formation of C17H35COO twice and Mg। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट चीज पे क्या ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे ये जो बना है दिस इज योर स्कम और प्रेसिपिटेट। यहां से सोप ने अपना झाग नहीं बनाया बल्कि वो प्रेसिपिटेट आउट हो गई है। नेक्स्ट टर्म इज द एक्वारिजिया। देखिए एक्वारिजिया क्या चीज है, तो ये एक मिक्सचर है HCl का विद HNO3। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये एक मिक्सचर है किसका, HCl विद HNO3। तो HCl इसमें क्या रेशियो होगी, 3:1 की रेशियो। देखिए इसको पुराने टाइम में जो होली फेथ माना करते थे, इसको थोड़ा खतरनाक एसिड मानते थे, बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू डिसोल्व एनी मेटल। हर मेटल को ये डिसोल्व कर सकता है। ठीक है, तो इसको जनरली कहाँ यूज करेंगे हम, मेटल्स को डिसोल्व करने के लिए, या फिर जैसे ग्लासवेयर से उनको क्लीन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम मेटल। देखिए सिंपल है, इथेनोइक एसिड, दिस वन इज योर इथेनोइक एसिड, रिएक्शन किसके साथ है, सोडियम के साथ। सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3COONA बिकॉज Na ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। तो ये आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट। प्रोडक्ट फिर से सेम बनने वाला है, इथेनोइक एसिड, दिस वन इज योर इथेनोइक एसिड, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इट रिजल्ट्स इन द रिएक्शन विद द Na2CO3। तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH3COONA, साइड प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इज योर CO2 गैस। और साथ अब देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेते हैं साथ साथ, CO2 गैस और साथ में क्या बनेगा, H2O। अब इथेनॉल को मैंने हीट किया H2SO4। H2SO4 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। मैंने अभी बताया था, इसको आप C2H6O भी लिख सकते हो। H2SO4 को साथ इसको हीट किया 443 केल्विन पे, तो इसका काम क्या, रिमूवल वाटर, वाटर माइनस कर दो, प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपके पास में C2H4 विच इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस, इथीन। नेम द गैस इवॉल्व एट एनोड एंड कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखिए वही सेम चीज आ गई, वाटर आ गया वाटर के अंदर। अच्छा एक और चीज पूछ सकते हैं, एक दो ड्रॉप आपको एसिड की या आप किसी इलेक्ट्रोलाइट की ऐड करनी पड़ेगी ताकि जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो सके। ठीक है, ये आपने कैथोड बना दिया, ये आपने एनोड बना दिया। तो कैथोड के ऊपर जो जाने वाला है दैट इज योर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, 2H पॉजिटिव विल टेक अप द 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट चेंज टू हाइड्रोजन गैस। जबकि एट एनोड, एनोड पे क्या इक्वेशन आने लग रही है, एनोड के ऊपर जो ऑक्सीजन गैस है वो वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, O2 नेगेटिव गेट चेंज टू O2। ठीक है जी, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है आपकी एनोड पे, कैथोड पे निकल रहा है हाइड्रोजन गैस, लेकिन रेशियो क्या रहेगी, रेशियो क्या रहने वाली है, देखिए H2O, ऑक्सीजन का मास है 8, हाइड्रोजन का मास है यहाँ पे, सॉरी ऑक्सीजन का मास है 16, हाइड्रोजन का मास है 2। तो रेशियो क्या रहने वाली है, 1:8। इनकी बाय मास यहाँ पे रेशियो रहने वाली है। लेकिन अगर मैं अमाउंट की, अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो ऑक्सीजन डबल नंबर में आने वाला है, हाइड्रोजन डबल नंबर में आने वाला है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। देखिए क्यों, क्योंकि हाफ ऑक्सीजन बनी है और 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है, तो इसका मतलब यहाँ रेशियो क्या रहने वाली है, 2:1। तो ये चीज ध्यान रखनी है, मास पे क्वेश्चन आ रहा है या नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो नंबर से रिलेट करेगा, 2:1 की रेशियो। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, व्हाट हैपन व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड मिक्स टुगेदर। देखिए सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 और सेकंड वन इज योर बेरियम क्लोराइड। क्या करते हैं इस क्वेश्चन को, Na2SO4 इस रिएक्शन इज विद द बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2NaCl। साइड प्रोडक्ट में बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे BaSO4 जिसका कलर क्या होता है, व्हाइट PPTs।
व्हाइट प्रेसिपिटेट्स व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन कौन सी आ गई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ गई आपकी। नेक्स्ट, ऑन मिक्सिंग लेड टू नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड। देखिए लेड नाइट्रेट की यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्शन किसके साथ करवाई है, पोटेशियम आयोडीन आयोडेट में। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई इस रिएक्शन में कि भाई जो ये लेड नाइट्रेट है, लेड टू नाइट्रेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन किससे आ रही है, पोटेशियम आयोडाइड से, मतलब Ki के साथ में। तो जैसे ये रिएक्ट करेगा इमीडिएटली इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ PbI2 और साइड प्रोडक्ट में आपके आगे 2KNO3। तो ये जो बना PbI2 इट फॉर्म द येलो पीपीटीज, आपके येलो प्रेसिपिटेट्स यहाँ पे बन जाएंगे आराम से। ठीक है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन गया येलो पीपीटीज। नेम द इनसॉल्युबल प्रोडक्ट लेड आयोडाइड। कलर क्या आ रहा है, येलो कलर आ रहा है। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, वो हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अभी अभी मैंने बताया था जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो एट कैथोड, कैथोड पे जो गैस बनेगी वो कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन गैस। एट एनोड, एनोड पे जो गैस बनने वाली है वो हमारी कौन सी है, ऑक्सीजन गैस। वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन टेस्ट ट्यूब इज डबल देन द अनदर। मैंने बताया था H2O के अंदर हाइड्रोजन जो है वो डबल रेशियो में और ऑक्सीजन जो है वो 1 रेशियो में है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। नेम द गैस, गैस कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। हाउ विल यू टेस्ट, हाइड्रोजन गैस का मैंने अभी अभी टेस्ट बताया था, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ ये बर्न करेगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर पे भी काफी क्वेश्चन बनते होते हैं। CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। इक्वेशन इसकी प्रिपरेशन की लिखनी है तो CaOH होल ट्वाइस के अंदर से हम लोगों ने whenever we pass out the chlorine gas immediately it results in the formation of CaOCl2 and the side product which is formed is the H2O वो यहीं से निकल जाएगा। मतलब कहने की बात ये CaOH होल ट्वाइस ये है, तो यहाँ से वाटर निकाल दिया, जो CaO बचा उसमें Cl2 लगा दिया। Why does dry HCl do not change the color of dry litmus paper? देखिए what is the reason behind it, dry HCl वो dry है, आयंस फ्री नहीं है, नो आयन इज फ्री टू मूव, फ्री टू रिएक्ट या फ्री टू शो एक्शन। तो जब आयन ही फ्री नहीं है तो लिटमस पेपर पे कौन अटैक कर पाएगा, कोई भी नहीं अटैक करेगा। जब कोई अटैक करेगा नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। On eating spicy food, we feel burning sensation in stomach. Why? When medicine is take, which medicine will you take as a remedy? तो बर्निंग सेंसेशन आ रही है, मतलब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिड बन चुका है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ HCl is formed in stomach is formed in stomach। तो इन दैट केस कारण रीजन क्लियर है। मेडिसिन क्या यूज करेंगे हम, एंटासिड्स। एंटासिड्स के अंदर हमारे पास क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज MgOH होल ट्वाइस, हम लोग इसे यूज करेंगे। या सम टाइम वी कैन ऑल्सो यूज द NaHCO3 बट वो इतना ज्यादा नहीं यूज होता। You are provided with 3 test tube, one contain distilled water, other 2 contain acid and bases respectively। अच्छा सिर्फ you are given only red litmus paper, सिर्फ आपको रेड लिटमस पेपर दिया है भाई। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है, रेड कलर का लिटमस पेपर दिया है, 3 टेस्ट ट्यूब आ गई आपकी और आपका जो लिटमस है वो सिर्फ रेड कलर का ही है। ठीक है, अब क्या होगा, रेड लिटमस की एक खास बात है कि जैसे ही वो एसिड में गया कोई चेंज नहीं आएगा, एसिड में गया नो चेंज, वाटर में गया नो चेंज, लेकिन जैसे बेस में गया तो इमीडिएटली बेस में जाते ही पहले इनिशियली जो कलर था वो क्या था, रेड था। इनिशियली जो कलर था वो रेड था जब वो नॉर्मल उसमें था, लेकिन जैसे ही वो बेस के अंदर गया इमीडिएटली उसका कलर क्या हो गया, ब्लू। ये कहाँ पे उसका कलर ब्लू, ये कहाँ था, एसिड में। अब आप इस ब्लू को इसमें डाल दो, अगर वापस से रेड हुआ तो इसका मतलब कंफर्म हो गया इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा एसिड था। फिर दोबारा दूसरी बार इसमें डालो वाटर, अगर ब्लू का ब्लू ही रहता है तो इसका मतलब कोई कलर चेंज नहीं होना हो रहा है, इसका मतलब ये वाटर है वहां पे। तो इस तरह से हम 3 टेस्ट ट्यूब्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड चेंजेस टू ब्लूइश ग्रीन इफ रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड पे बेस्ड जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, यहाँ पे सबसे ध्यान क्या देने वाली चीज, अब देखिए ऐसा होने का कारण क्या है कि जैसे हमारे पास CuO है, दैट इज CuO एक ब्लैक कलर का कंपाउंड है,
ब्लैक कलर है। जैसे ही इसको HCl के साथ हम लोगों ने ट्रीट कराया, इमीडिएटली इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CuCl2 और साइड प्रोडक्ट में आपके पास क्या आ गया, एक H2O बन गया हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ जो CuCl2 बना है इसका कलर है ग्रीन हमारे पास और इसका कलर क्या था, ब्लैक। तो इस रिएक्शन के बारे में बात करने लग रहे हैं। वाई का रीजन आ गया CuCl2 फॉर्मेशन। हाउ डज यूज ऑफ टूथपेस्ट हेल्प इन प्रिवेंटिंग टूथ डिके? देखिए टूथपेस्ट का जो पीएच लेवल होता है वो क्या होता है, हाई होता है। और जो माउथ का पीएच लेवल होगा वो अगर हम लोग ब्रश नहीं करेंगे वो होता जाएगा लो। वैसे तो इनिशियली 7.38 के 7.33 7.2 के आसपास होता है ये, लेकिन जब हम चॉकलेट खाते हैं, कुछ स्वीट्स खाते हैं, तो मीठा खाने की वजह से ये क्या आ जाता है, लो आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने हैं कि ये जो पीएच है उसको इंक्रीज करने के लिए, मतलब ये जो लो हुआ था ये हाई हुआ, ये आपस में क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमारे जान जो है वो बचे रह जाएंगे वहां पे। ये चीज ध्यान रखनी है। वी शुड नॉट स्टोर पिकल्स इन मेटल कंटेनर। बिल्कुल, पिकल कंटेन एसिड्स। पिकल्स के अंदर क्या होते हैं, एसिड, और वो मेटल कंटेनर में नहीं रखना। मेटल प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये काफी खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाता है। सॉल्ट जो हमें बनाना था उसकी जगह कुछ और बन गया। व्हेन वाटर इज एडेड टू व्हाइट पाउडर अ विग्रस रिएक्शन टेक प्लेस विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ए इज ऑल्सो, देखिए व्हाइट वॉश का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो व्हाइट वॉश के क्वेश्चन का आंसर आपका CaO ही रहने वाला है। व्हाइट वॉश वाले क्वेश्चन का फिसी साउंड आ जाए, हिस्सी साउंड आ जाए, कुछ भी इस तरह से बन आपको क्वेश्चन में बना के दे दे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CaO की जैसे ही आपने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट कराया, इमीडिएटली इट गिव राइज टू लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस, एंड साथ में बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट गेट रिलीज। मतलब आप चूने के उसमें हाथ नहीं डाल सकते हो, हाथ जल जाएगा, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। ए सब्सटेंस आपका CaO है, जनरली जो हम लोग व्हाइट वॉश में भी यूज करते हैं। तो क्वेश्चन व्हाइट वॉश से भी इसको रिलेट करके आ सकता है। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट इन मेकिंग ब्रेड केक। अभी अभी मैंने इक्वेशन ये थोड़ी देर पहले बताई थी कि आपका एक ही आंसर है 4 क्वेश्चन का, तो वो चारों के चारों जो मर्जी बने उनमें से। तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, Na2CO3, साथ में क्या आ गया H2O और साथ में क्या बन गया CO2। अब ये CO2 रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, किसी का किसी भी पकोड़ा बनाना है, कुछ करना है, या फिर मिल्क मैन का चलो कंसेप्ट अलग बताया था मैंने, वहां पीएच को राइज करने के लिए यूज किया। हाउ डज बेकिंग सोडा हेल्प इन मेक केक एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी? दैट इक्वेशन यू हैव टू राइट। फायर एक्सटिंग्विशर, यही चीज। pH वैल्यू ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज लेसर और ग्रेटर देन 7। इट इज ग्रेटर देन 7। इट इज ग्रेटर देन 7। और इसके पीछे रीजन क्या है, इसका बेसिक नेचर। एन apparatus एज वी सेट इन द फिगर वी ऑब्जर्व, वही वही क्या कहते हैं आपका NaCl वाली, आई थिंक क्लोर एल्कली प्रोसेस का क्वेश्चन है ये। तो डाइल्यूट HCl ऐड किया इसमें, रबर कोक के साथ में, बीकर है और अंदर क्या डाला हुआ हम लोगों ने, आयरन नेल लगा रखी है इलेक्ट्रोड्स की जगह पे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आयरन नेल हम लोगों ने अटैच की हुई है तो हुआ क्या, अभी ये क्वेश्चन ये कह रहा है, वुड द बल्ब ग्लो विद सेम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH और NaCl? बिल्कुल करेगा ग्लो, बल्ब विल ग्लो, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कैसे, जैसे मैं NaOH को वाटर में ऐड करता हूँ, इमीडिएटली इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जबकि यही चीज अगर मैं NaCl के साथ कर रहा हूँ तो वो भी अपने क्या बना रहा है, आयंस बनाने लग रहा है। तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है, ग्लो करेगा। यही क्वेश्चन जो है वो ग्लूकोज की टर्म में भी बना सकता था, यही क्वेश्चन वो इथेनॉल की टर्म में भी बना सकता था। अगर मैं इनको डालता हूं देन देयर इज नो कलर चेंज, मतलब देयर इज नो पासिंग ऑफ लाइट थ्रू देम, फिर नहीं होगा यहाँ से। अब फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6, वही क्वेश्चन आगे जिसके बारे में बात कर रहा था। हाउ डू यू थिंक pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड? क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, वहां पे लैक्टिक एसिड बना है। That is the reason. Why does distilled water do not conduct electricity? Because distilled water में कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, because of no free ion, no free ion in water। पानी के अंदर कोई फ्री आयन नहीं है, तो इस वजह से। When concentrated aqueous solution of substance X is electrolyzed, वही सेम क्लोर एल्कली प्रोसेस पे क्वेश्चन आ गया। सब्सटेंस X आपका NaCl है, जिसके एक्वा सॉल्यूशन को हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइज कराया, तो प्रोडक्ट में NaOH बना, साथ में Cl2 बन गया, साथ में हमारे पास क्या बन गई, एक हाइड्रोजन गैस बन गई वहां पे।
नेक्स्ट की जो बात हो रही है दैट इज व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या चीज है भाई? थर्माइट रिएक्शन है Fe2O3 है, इट रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, सो ऑब्वियसली इट गेट चेंज टू Al2O3 साथ में Fe। अब देखिए मान लीजिए कोई आयरन का एक ट्रेन का वो है, मान लीजिए उसमें कोई क्रैक आ गया इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, वहां पे जाके उसकी वेल्डिंग करवा देंगे, एल्यूमिनो थर्माइट वेल्डिंग भी हम लोग इसको नाम देते हैं। क्या करेंगे, एल्यूमिनियम की रोड से इसके ऊपर वो काफी स्ट्रॉन्ग हीट देंगे, इससे क्या होगा कि आयरन अपनी एक जो था अपनी वापस उसी फॉर्म में होगा, और जो एल्यूमिनियम वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा वहां से बन बन के। तो इन द सेंस आप ये बोल सकते हो कि रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, कई बार मेटल की रिफाइनिंग करनी होती है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, why carbon cannot be used to reduce the oxide of highly reactive metal? हम लोग क्यों नहीं कर सकते? देखिए, क्योंकि जो कार्बन होता है, कार्बन की जो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी है ना बहुत ज्यादा है। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन अब अगर कोई मेटल कार्बन से ज्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीजन की एफिनिटी की, तो उन्हें हम लोग नाम देते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होती है वो सारी की सारी जो है वहां पे वो कोई भी जो होगी वो कार्बन को ऑक्सीजन अपनी नहीं देंगी, वहां पे नहीं देंगी तो वहां पे रिएक्शन जो आना है वहां पे चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे कार्बन के साथ। सो वी कैन नॉट यूज कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वहां पे हम लोग उसे यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन। देखिए, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, राइट टू इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। देखिए, यहाँ पे रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस हमें नजर आने लग रहा है। देखिए, रोस्टिंग मतलब किसी सब्सटेंस को हमें रोस्ट करना है। अब रोस्टिंग अगर करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, रोस्टिंग हमें कैसी करनी पड़ेगी, बाय हीटिंग। लेकिन हीट कब होगी, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर हम लोग को उस सब्सटेंस को हीट करना है। लेकिन कैल्सिनेशन अगर कराना है, हीट in the absence of air, in the absence of एयर या ऑक्सीजन। अब मेनली जो कैल्सिनेशन इट इज यूज फॉर द कैल्शियम का मतलब कार्बोनेट और, एंड जो रोस्टिंग होता है इट इज मेनली यूज फॉर द सल्फाइड और। ये मेनली यूज होगा सल्फाइड और के लिए। अब जैसे मेरे पास ZnS है, ZnS को तो मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि ये ZnO में और साथ में SO2 गैस निकल सके। ठीक है ना। लेकिन CaCO3 को क्यों ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी, उसके अंदर तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CaO एंड CO2। तो मेनली कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग जो होते हैं दैट प्रोसेस कम्स अंडर ऑक्सीडेशन। ये दोनों प्रोसेस किसके अंदर आते हैं, मेनली ऑक्सीडेशन के अंदर आते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन है वो उसके अंदर आएंगे। ऑक्सीडेशन क्यों, तो क्योंकि ऑक्सीजन से जो इंप्योरिटीज होती है दे कैन बी रिमूव इजिली, impurities can remove can remove easily। इम्प्योरिटीज जो है वो आराम से रिमूव हो जाएंगी कैल्सिनेशन की हेल्प से और रोस्टिंग की हेल्प से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बजाता है वो रिडक्शन ही बजाता है, और बड़ा आसानी से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं। बट वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के केस में कार्बन को हम लोग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O। अब Na2O की फॉर्मेशन कैसे दिखाएं, देखिए भाई Na का एटॉमिक नंबर क्या है 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है 2 8 एंड 1। वहीं पे ऑक्सीजन जो है एटॉमिक नंबर क्या 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है 2 एंड 6। तो अगर मैं देखूं तो सोडियम अगर अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन को, तो ऐसा करने की वजह से सोडियम क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव, और ऑक्सीजन उस एक इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना देगा, नेगेटिव। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम तो ठीक बन गया, सोडियम ने तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को पूरा कर लिया, लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो अभी भी ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ भी पूरा नहीं ऑक्टेट बना पा रहा है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन और गेन करना पड़ेगा, यानी किसी दूसरे सोडियम से। तो दूसरे सोडियम ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इट गेट चेंज टू 2 8, लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन पे चार्ज किया गया -2। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब दो सोडियम एटम अपने एक ऑक्सीजन को क्लब कर रहे हैं एक दूसरे से, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है Na2O। तो ये इस तरह से बन जाएगा बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। MgO का केस थोड़ा रिलेटिवली इजी है, क्योंकि देखिए Mg का एटॉमिक नंबर क्या है 12 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है 282। वहीं पे ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है 26। तो जैसे ही वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इट बिकम्स ए फॉर्मेशन, और इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 28, जबकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन 28 आएगी। तो ऑक्सीजन पे -2 और Mg पे चार्ज क्या रहा है +2, सो द बोथ कंबाइन विद ईच अदर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ MgO। आसानी से बन जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर, मतलब हमें इसका बेसिक रीजन देना है यहाँ पे। तो जिंक जो है वो आराम से डिस्प्लेस कर ही लेगा, और क्यों डिस्प्लेस कर पाएगा भाई? क्या रीजन दोगे इसका? इसका रीजन आ गया हमारे पास में, जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, मैंने शायद बताया भी था, वो कॉपर के घर में जाएगा और कॉपर को उसकी जगह से दौड़ा देगा, और प्रोडक्ट क्या बन गया? ZnSO4 साथ में Cu। कौन सी रिएक्शन है ये? रिडॉक्स रिएक्शन है, जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है। जिंक की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब जिंक की अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरा क्या हमारे पास में? कॉपर। तो कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन होने लग रही है, कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है ये पॉइंट समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में आ गया हमारे पास, तो यहाँ जिंक की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और वहीं पे अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन। तो एक छोटी सी बात याद रखना, जिसकी ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन होती है वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है, ध्यान रखना। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर बिकॉज ऑफ सल्फाइड लेयर, क्योंकि सिल्वर के ऊपर क्या होता है? सिल्वर अपनी एक सल्फाइड लेयर बना लेता है अपने सरफेस पे, सिल्वर सल्फाइड, इसी वजह से जो हमारी सिल्वर है वो ब्लैक होती है। मेटल सल्फाइड इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड इन द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट सल्फाइड और, बिकॉज ऑक्साइड इसलिए बनाया बिकॉज इट इज इजी टू मेटल एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, क्योंकि मैं ऑक्साइड से उनको इजीली निकाल सकता हूं। उसके बाद में नेक्स्ट, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड? देखिए जब सिल्वर सल्फाइड हम बनाएंगे तो Ag जो बनेगा वो पॉजिटिव और S बनेगा -2 चार्ज के साथ में, ठीक है, तो ये हमारे आयंस बन गए। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन आयरन इज पास्ड ओवर रेड हॉट, सॉरी स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन। तो जैसे ही मैंने आयरन के ऊपर से स्टीम को पास ऑन किया तो इमीडिएटली इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4। उसके बाद क्या कह रहे हैं? और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बन जाएगी हमारे पास में, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3, इट इज रिएक्टिंग विद NaOH as we have already done this reaction. It results in the formation of 2NaAlO2 which is also called as sodium aluminate. सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल। आगे कह रहे पोटेशियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, यानी K2O को मैंने किस में डिसॉल्व किया है? वाटर के अंदर। तो जैसे हमने इसके अंदर डिसॉल्व किया तो इमीडिएटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2KOH। जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। जिंक मेटल की हम लोगों ने रिएक्शन जो है वो करवाई है HCl के साथ, तो ऑब्वियसली क्या बन रहा है प्रोडक्ट में? ZnCl2, और साथ में क्या बनेगा? आपके हाइड्रोजन गैस। उसके बाद कहता है आयरन इज पास्ड सॉरी हीटेड स्ट्रांगली इन ऑक्सीजन। अब देखिए आयरन को जब मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया है तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3, ठीक है, तो ये हमारे पास में ये बन जाएगा। अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए लास्ट पार्ट में क्या कहने लग रहा है कि भाई जो मेटल एक्स है ग्रे इन कलर, देखिए ग्रे कलर में क्वेश्चन की दो ऑप्शंस बन सकती है। वैसे तो 80% चांसेस रहते हैं कि 80% चांसेस रहते हैं कि वो आपका सिल्वर पे क्वेश्चन हो, लेकिन 20% चांसेस जिंक के भी रहते हैं कभी कभार। देख लेते हैं क्वेश्चन में आगे। इट इज यूज्ड फॉर कोटिंग आयरन टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। लो जी, यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन की बात कर रहे हैं ये लोग, गैल्वेनाइजेशन की। तो गैल्वेनाइजेशन ऑब्वियसली किससे होता है? जिंक से। तो यहाँ जो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली यहाँ पे बात होने लग रही है, इनडायरेक्टली बात हो रही है आपकी ZnCO3 की, जिंक कार्बोनेट की, ठीक है, जिंक कार्बोनेट की, क्योंकि इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट Y, ठीक है, इन नेचर, दैट इज जिंक कार्बोनेट। अब मैं अगर इसे हीट करता हूं तो एज यू नो हीटिंग से जो जिंक है वो चेंज हो जाएगा Zn, और साथ में बनेगा CO2 गैस, ये Y है आपका, ठीक है, चेंजेस टू ऑक्साइड Z। Z ऑन रिडक्शन विद कार्बन गिव मेटल X, ठीक है। तो अब देखिए जो ZnO की बात हो रही है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है? कार्बन से, और वापस से क्या बनाने लग रहा है? Zn साथ में CO, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान रखनी है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब मैक्स टू मैक्स क्या पूछ लेगा? X, थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया, प्यूरिफिकेशन का पूछा हुआ था, प्यूरिफाई कैसे होगा X को? अगर हमें प्यूरिफिकेशन करनी है तो कैसे करेंगे? बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आई होप आपको लोग को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा।
अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड मैक्सिमम आपके फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैक्सिमम मार्क्स लेने का चांस मिले। अब जो बायो है वो कवर करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर। थैंक यू।